મૂળ આપણા જ લુડવા ગામની આ દીકરી વિદ્વતાનો એટલો ઊંચો સ્તર પ્રાપ્ત કર્યો છે એમણે કે આપણે બધા ગૌરવની લાગણી અનુભવીએ. શ્રીમાન જસવંતલાલ પોકાર અને માતા વિમળાબેનનું આ પરમ સૌભાગ્ય છે કે વિદુષી શીતલબેન એમના પુત્રી છે. કેવલ પુત્રી નહીં, સુપુત્રી છે. ઈશ્વર કરે આવી સુપુત્રી અમને બધાને પ્રાપ્ત થાય, અમે બધા ધન્ય ધન્ય થઈ જઈએ. તો શીતલબેન ડેન્ટલ સર્જન એટલે કે દાંતના ડોક્ટર છે. માર્ચ 2001માં તેમણે ગવર્મેન્ટ ડેન્ટલ કોલેજ એન્ડ હોસ્પિટલ અમદાવાદથી BDSની ડિગ્રી મેળવી છે. ત્યારબાદ એમના જીવનમાં એવા પરિવર્તનો આવતા ગયા કે એમના પૂર્વ સંસ્કારો જાગૃત થયા અને એમને ઈચ્છા થઈ કે આર્ષ વિદ્યાને એમણે પ્રાપ્ત કરવી છે. તો આર્ષ વિદ્યાનું અધ્યયન કરવા માટે શીતલજી આર્ષ શોધ સંસ્થાન આલિયાબાદ તેલંગાણામાં જોડાયા, જ્યાં પ્રાતઃ સ્મરણીય આચાર્ય આનંદ પ્રકાશજી અને આચાર્ય નિર્જાજીના સાનિધ્યમાં રહીને લગભગ 8.5 વર્ષ સુધી સંપૂર્ણ સંસ્કૃત વ્યાકરણ તેમજ 5 વૈદિક દર્શનોનો એમણે અભ્યાસ કર્યો. અને ત્યાં એમનું જીવન અક્ષરશઃ ભર્તૃહરિ મહારાજના આ શ્લોક જેવું હતું. ભર્તૃહરિ મહારાજે એક યોગાભ્યાસીનું વર્ણન આ શ્લોકમાં ખૂબ સરસ રીતે કર્યું છે. ધૈર્યમ યસ્ય પિતા ક્ષમા ચ જનની શાંતિ ચિરમ ગેહિની સત્યમ મિત્રમિદં દયા ચ ભગિની ભ્રાતા મનઃ સંયમઃ શય્યા ભૂમિતલં દિશોऽપि વસनं જાનામૃतं ભોજनं યે તે યસ્ય કુટુંબિનો વદ સખે યે તે યસ્ય કુટુંબિનો વદ સખે કસ્માત ભયં યોગિનઃ. તો આવી તપશ્ચર્યાની ભઠ્ઠીમાં શેકાઈને આવો પ્રખર જ્યોતિપુંજ બહાર આવ્યો છે. 2011-12માં શ્રદ્ધેય આચાર્ય સત્યજીતજીના સાનિધ્યમાં ઋષિ ઉદ્યાન અજમેર રાજસ્થાનમાં રહીને મીમાંસા દર્શનનો અભ્યાસ કર્યો. આમ તેમણે પાણિનીય વ્યાકરણાચાર્ય, નિરુક્તાચાર્ય, દર્શનાચાર્ય આવી ઉત્કૃષ્ટ ડિગ્રીઓ પ્રાપ્ત કરેલી છે. લગભગ 2 વર્ષ સુધી તેમણે સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી ઓફ હૈદરાબાદ અને IIT હૈદરાબાદ આ બંને સંસ્થાઓમાં ચાલતો ભાષા સંબંધી પ્રોજેક્ટ એટલે કે ટ્રાન્સલેશનનું કામ, સંસ્કૃત ટુ હિન્દી ઇંગ્લિશ મશીન ટ્રાન્સલેશન, આ કામમાં એ સંલગ્ન રહ્યા. આ ઉપરાંત HCUમાં સંસ્કૃત લેક્ચરર તથા ગેસ્ટ ફેકલ્ટીના રૂપમાં પણ એમણે સેવા આપી. ઋષિ ઉદ્યાન અજમેરમાં પરોપકારિણી સભા તથા ગુરુકુલ સંબંધી કાર્યો જેવા કે પ્રૂફ રીડિંગ, યોગ શિબિર, પ્રવચન, લેખન કાર્ય વગેરેમાં એ યથાસંભવ સહયોગ આપતા રહ્યા. ત્યારબાદ લગભગ 3 વર્ષ સુધી તેમની માતૃ સંસ્થા આર્ય શોધ સંસ્થામાં અધ્યાપનનું કાર્ય કર્યું. વર્તમાનમાં એપ્રિલ 2016થી આર્ય વન વિકાસ ફાર્મ ટ્રસ્ટ દ્વારા સંચાલિત આર્ય વન આર્ષ કન્યા ગુરુકુળમાં પ્રધાનાચાર્ય એટલે કે પ્રિન્સિપલની પોસ્ટ પર એ કામ કરી રહ્યા છે. આજીવન નિઃશુલ્ક સેવા આપવાના સંકલ્પ અંતર્ગત સેવારત છે. પોઈન્ટ ટુ બી નોટેડ કે એમણે આજીવન આર્ય જગતને પોતાનું જીવન ન્યોછાવર કરી દીધું છે અને નિઃશુલ્ક આ સેવા આપી રહ્યા છે. ધન્ય છે તેમના માતા પિતા, ધન્ય છે તેમની આ માતૃભૂમિ અને તેમની ગુરુકુળો જ્યાંથી આવી મહાન વિભૂતિનો પ્રાદુર્ભાવ થયો છે. આર્ય જગતના ફલક પર ચમકતો આ જ્ઞાન પુંજનો પ્રકાશ સ્ત્રોત છે અને જેમાંથી અસંખ્ય આત્માઓ જ્ઞાન પ્રકાશ મેળવીને કૃતકૃત થઈ છે, થઈ રહી છે અને થતી રહેશે. તો
આવી આ વિદુષી બહેન સ્વસ્થ દીર્ઘાયુષ્યને પ્રાપ્ત કરે, એમની યશ કીર્તિ સ્થળ કાળ બંને દ્રષ્ટિએ દૂર દૂર સુધી ફેલાય એવી શુભકામના આપણે બધા સાથે મળીને વેદના ખૂબ પ્રચલિત આ યજુર્વેદના મંત્ર સાથે આપણે તમે પણ મારી સાથે સુર જરૂર પરોવાવી શકશો, જેમાં ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરી છે કે આપણી આ દીકરી 100 વર્ષથી પણ અધિક આયુષ્ય પ્રાપ્ત કરે. ઓમ તક્ષુર્દેવાહિતમ પુરસ્તા શુક્રમુચ્ચરત પશ્યેમ શરદઃ શતમ જીવેમ શરદઃ શતમ શૃણુયામ શરદઃ શતમ પ્રબ્રવામ શરદઃ શતમ દીના શ્યામ શરદઃ શતમ ભૂયશ્ચ શરદઃ શતાન. તો શીતલ દીદી, આપને આવું ખૂબ સરસ દીર્ઘાયુષ્ય પ્રાપ્ત થાવ એવી શુભકામના સાથે હવે અમે તમારી ઓજસ્વી વાણીનો લાભ લેશું. કૃપયા 15 મિનિટ માટે અમને તમારી વાણીનો લાભ આપશો. ધન્યવાદ. આર્ય સમાજ લુડવાના 75મા વાર્ષિક ઉત્સવ અમૃત મહોત્સવમાં જેની જાજ્વલ્યમાન ઉપસ્થિતિ છે, ओजस्वी वाणीना जी धनी છે. स्वामी जी तो शायद गुजराती नहीं समझ रहे हैं, पर क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग गुजराती और क्योंकि ये मंच महिला सम्मेलन का ज़्यादातर दोनों वक्ताओं ने हिंदी में ही किया था, तो मैंने सोचा हिंदी गुजराती हिंदी चलेगी. हिंदी वाले हाथ उठाए. बहुत बढ़िया है. गुजराती हिंदी को इतना प्रेम करते, बहुत आनंद हुआ. तो अब हिंदी में ही पूरा करेंगे. तो मैं स्वामी जी का हृदय से सम्मान करती हूँ. स्वामी जी की बहुत ओजस्वी वाणी आप सबने सुनी हुई है और बहन अंजलि जी को भी सब जानते हैं. यद्यपि परिचय की तो मेरी आवश्यकता, इन दोनों महानुभावों के परिचय की आवश्यकता नहीं है. देश में क्या विदेश में क्या, दोनों की प्रखर वाणी पहुंची हुई है. और छोटी बहन जिस गुरुकुल में आना चाहती है, मेरा भी यदि सौभाग्य होगा, यदि टिक जाए, वो आना तो आर्यन अष्टकन्या गुरुकुल में चाहती है संध्या जी इस कार्यक्रम के बाद. पर मैंने शर्त रखी है कि हमारे गुरुकुल में तो वही टिक पाता है जो मिट्टी में दाने की तरह मिल जाता है. तो ये कड़ी शर्त में से यदि पास हो गई, आप लोगों के आशीर्वाद की इनको जरूरत है. वाणी तो ओजस्वी है ही, बस उनको थोड़ा शास्त्रीय आधार मिल जाए जो गुरुकुल में संभव है. तो आप सबके आशीर्वाद से मैं भी कामना करती हूँ कि आए, हम भी धन्य हो जाएंगे, आर्य समाज भी धन्य हो जाएगा. तपस्वी की तपस्या की भूमि है. महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की ये तपस्थली है, तो वहाँ तो हमको कोई कुताही नहीं रखनी चाहिए तपस्या करने में. और आर्य भद्रजनों जिस कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति के साथ कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं. नाम तो शीतल है, बाकी आगे आप समझ लेना. शीतल तो हूँ जब तक वाणी मेरी बंद है. और यद्यपि 2001 में मेरा परिचय भी बड़ी गरिमामय, शायद उतनी हूँ कि नहीं हूँ, पर किरण दीदी ने तो मुझे बहुत आसमान पे बिठा दिया और 100 साल तक तो सूली पे लटका ही दिया. उससे नीचे आप लटक जाओ, हम तो नीचे रहेंगे, आपको बस बकअप करते रहेंगे. तो किरण जी, बहन जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि इतना ओजस्वी जो परिचय मैंने मेरा पहली बार सुना, मैं भी आनंद ले रही थी मेरे परिचय का और सोच रही थी कि शायद मैं ऐसी हूँ कि नहीं. 2001 में मैं घर छोड़ के निकल तो गई थी, पर सुना है ना कि गुजराती मोही होते हैं, और आप भी गुजराती हैं. मैंने तो घर छोड़ा, पर आपने मुझे नहीं छोड़ा.
और उसकी मुझे खुशी है। और झूम झूम के कह रहे हैं अपनी बेटी लुड़वा की बेटी। और मुझे भी आज फक्र है कि मेरे दादाजी भी लुड़वा के, मेरे नाना जी भी लुड़वा के हैं, दोनों ही मेरे लुड़वा के हैं। और पाटीदार समाज कच्ची पटेल नियाणी को बहुत मानते हैं। आज मैं उसका सदुपयोग करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मुझे छोड़ा नहीं है। मैंने तो बहुत चाह छोड़ दूं, आप मुझे छोड़ दें, पर पकड़ के रखा है। आप लोगों को गर्व है तो आज मुझे भी गर्व है कि मेरे मारू मावतर અહીંયા બેઠું છે અને આજ હું એક વક્તા વિદુષી તરીકે નહીં પણ તમારી નિયાણી તરીકે બે શબ્દ કહેવા માટે માંગુ છું આપવા માટે નથી ઊભી થઈ। અને તમને ખરેખર ગર્વ હોય કે હું તમારી દીકરી છું ને આ લુડવાનું ગૌરવ છું ને કચ્છી સમાજનું ગૌરવ છું, તો તમે હાથ ઉઠાવો અને કહો કે હું જે માગીશ તે તમે મને આપશો। એ જ લોકો હાથ ઉઠાવે कि जे लोग ये सामर्थ्य रखते हैं कि जो मैं आज मांगूंगी वो देंगे, वो ही मुझे अपनी बेटी कहे, बाकी हाथ नीचे रखे। और जिंदगी में कभी मुझे अपनी बेटी नहीं कहे अब हाथ उठाए। कितने लोग चाहते हैं ये मानना कि ये हमारे परिवार की है, हमारे समाज की है। वो जो आज चाहेगी, केवल एक ही बार मांगूंगी, आगे नहीं मांगूंगी। आज तक नहीं मांगा, आगे भी नहीं मांगूंगी, केवल अभी इसी वक्त मांगूंगी। जिनमें हिम्मत है वो हाथ उठाए, दोनों हाथ उठा दे। 50% शायद उठे होंगे, और उठाए थोड़ा सोच के। मुझे सबके हाथ चाहिए, मैं आपकी बेटी हूँ, बार बार नहीं मांगने आऊंगी, केवल आज ही मांग रही हूँ। पिताओं से भी उतने हक से और माताओं से भी बहुत बढ़िया। लगभग हाथ उठ गए, 95%, 100% नहीं उठे। उसके लिए भी सौभाग्य चाहिए कि सब अपना समझे। शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, और तपस्या करेंगे। स्वामी जी भी तो गए थे ना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी गुरु विरजानंद जी के गुरुकुल में अभ्यास करने के बाद पाखंड खंडिनी लहराई थी, कोई नहीं आया। उन्होंने क्या सोचा, मेरी तपस्या में कमी है, वापस वो तपस्या करने गए। मैं भी तपस्या करूंगी। कभी 100 सारे हाथ उठा देंगे, पर खुशी है 95 लोग ने हाथ उठाया है। महिला सम्मेलन है, महिला प्रधान बात है। बहुत ओजस्वी वाणी में 2 वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं। मैं जो मांगूंगी वो भी माताओं से संबंधित, पर बिना पुरुषों के सहयोग के। चाहे वो भाई हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो पति हो, माताएं पूरा नहीं कर सकती हैं। दोनों का सहयोग चाहिए। संसार चलता ही स्त्री पुरुष से है, जोड़े में ही संसार चलता है। प्रकृति और पुरुष का जोड़ा मूल में है, वो है तभी ये सारा परिवार है। हमारा भी ये परिवार आगे बढ़े, हम सब चाहते हैं, नारे भी लगाते हैं, पर कभी हम सोचते हैं कि ये परिवार आगे कैसे बढ़ेगा। समय क्योंकि थोड़ा है, सूत्र रूप में कहूंगी, आप लोग समझदार हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश एक बार पढ़ने लायक ग्रंथ है, पढ़ना चाहिए बड़ी गंभीरता से। और उसमें आप देखें स्त्रियों के लिए क्या कहा। स्त्रियों को सब अधिकार स्वामी जी ने दिए। वो कलेक्टर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IPS, IAS, डिजाइनर बने, फैशन डिजाइनर बने, वो पायलट बने। सब माताएं कर सकती हैं, बहनें कर सकती हैं। स्वामी जी ने अनुमोदन किया है, वेद उसका अनुमोदन करता है। पर क्या बनना ज्यादा उचित है? जो केवल हम ही कर सकते हैं और जो क्षेत्र पूरा खाली पड़ा हो उस कार्य को हम करें, या जिसको सब कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, उस कार्य को करने में हमारी महानता है। किस कार्य को करना चाहिए? जो केवल स्त्री, और वो भी कोई कोई, सब नहीं, उस कार्य को करना ज्यादा अच्छा है, या जिसको स्त्रियां भी कर सकती है? कलेक्टर कोई भी बन जाए, डॉक्टर कोई भी बन जाए, पायलट कोई भी बन जाए, शिक्षक कोई भी बन जाए, स्त्री भी बन सकती है, पुरुष भी बन सकते, सबको अधिकार है। तो कौन सा काम हमको चयन करना चाहिए? मैं माताओं से सुनना चाहूंगी, वो काम जो केवल माताएं ही कर सकती हैं, वो काम जो सब कर सकता है, हर कोई व्यक्ति, कौन सा काम करना चाहिए? आवाज नहीं आ रही है,
जो केवल माताएं सब सम्मत है क्या? हाथ उठा दें एक बार। पिता लोग भी, माता लोग भी, क्या आप अपनी बेटियों को वो काम करने की प्रेरणा देंगे जो केवल आपकी बेटी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता? वो सब हाथ उठाए, माताएं भी, बहनें भी, जो भी है, जो मानती है मैं ही कर सकती हूँ, कोई नहीं कर सकता, वो काम करना चाहिए। हाथ बहुत कम उठे, जितने भी उठे हिम्मत वाले लोगों ने उठाए हैं, क्योंकि यही तपस्या का काम है, यही वेद का आदेश है, यही स्वामी दयानंद जी का स्वर है, अंतःकरण की इच्छा है। समझदार को इशारा काफी। स्वामी जी ने क्या मांगा? सब कुछ करने का अधिकार दिया। सत्यार्थ प्रकाश आप पढ़ेंगे, स्पष्ट रूप से आप देख पाएंगे। स्त्री के लिए, एक महिला के लिए स्वामी जी ने 3 पद का चयन किया, केवल मात्र 3। एक माता, दूसरा पत्नी, तीसरा वधू, बहू। 3 पद, गरिमामय पद स्वामी जी की दृष्टि से स्त्री के लिए। इन 3 को भी और संक्षिप्त कर दें तो केवल मात्र पद है एक माता का। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ही नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी तो वेद के ही तो मूर्त स्वरूप है। वो जो बोल रहे हैं वो साक्षात वेद ही बोल रहे हैं। भगवान परमात्मा, परमपिता परमात्मा की साक्षात वाणी है, वो ही कह रहे हैं। माता का स्वरूप सर्वश्रेष्ठ। आज बच्चे बिगड़ रहे हैं, समस्या है ना परिवार में, बच्चे सुन नहीं रहे, मानते हैं ना आप? बच्चे जिद्दी हो रहे हैं, वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर परिवार बढ़ रहे हैं। बच्चे माँ बाप कहीं एक ही बिल्डिंग में रहेंगे, ऊपर बच्चे रहते होंगे, नीचे माता पिता रहते होंगे, है कि नहीं? आपके यहाँ पर भी है, केवल मैं बाहर वालों की बात नहीं कह रही हूँ। बच्चे बिगड़ रहे हैं, सबको समस्या है। शादी के बाद बच्चा सुनता नहीं है पत्नी को लेकर के, या पत्नी अपने पति को लेकर के माँ बाप से अलग हो जाती है। वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, डाइवोर्स बढ़ रहे हैं, पति पत्नी में झगड़े बढ़ रहे हैं, उच्छृंखलता बढ़ रही है। इसका समाधान कलेक्टर कर सकती है क्या? जवाब चाहिए मुझे, हाँ या ना। कलेक्टर कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। डॉक्टर कर सकती होगी, टीचर कर सकती होगी, पायलट कर सकती होगी, फैशन डिजाइनर कर सकती होगी, कौन करेगा? एक स्वर में मुझे आवाज चाहिए इसका समाधान। सारी समस्याओं का समाधान किसके पास है? माँ के पास है। माँ बनने की सामर्थ्य किसके पास? स्त्री के पास, पुरुष के पास। तो संसार में एकमात्र कार्य जो केवल महिला कर सकती है और कोई कर ही नहीं सकता, और उसके बिना समस्या की किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। 32 टुकड़े यूं ही नहीं हो रहे, माँ नहीं है। फ्रिज में कोई यूं ही पैक नहीं हो रहा है, माँ नहीं बची। डाइवर्स हो रहे हैं, माँ नहीं रही। सब समस्याएं माता के मर जाने के कारण उठी है। माँ कहाँ है? कभी खोज के देखा? माँ जिंदा भी है आज। स्त्री तो है हम, पर माँ है क्या हमारे के अंदर? माँ बनना है। परम पिता परमात्मा ने स्त्री को कहा, स्त्री को नहीं, माँ को कहा, ये सृष्टि मैंने बना के रख दी। हम जो ब्रह्मा विष्णु महेश नाम सुनते हैं, ब्रह्मा सबसे बड़ा क्यों? ब्रह्मा किसको कहते हैं? जो संसार को बनाता है, उसी को हम ब्रह्मा कहते हैं। तो ब्रह्मा परमपिता परमात्मा ने संसार बना करके रख दिया। पत्थर, पहाड़, नदी, नाले, सूरज, चांद, सितारे, सब कुछ बना के रख दिया। फिर स्त्री को देखा, स्त्री की ओर देखा, और स्त्री में उस मातृ शक्ति की ओर देखा, और उस माँ को कहा, आगे की विशेष सृष्टि का निर्माण मैं तुझे सौंप रहा हूं। तेरी इच्छा के अनुसार तू इस संसार को बनाए। शक्ति केवल तेरे पास है, संसार में और किसी के भी पास नहीं है। उस माँ के लिए स्वयं परम पिता परमात्मा ने कहा, तू आज से ब्रह्मत्व पद का धारण कर रही है, तू आज से ब्रह्मा के रूप में कही जाएगी। कौन कही जाएगी? माँ कही जाएगी। और वो माँ कैसी? केवल जन्म दिया वो जननी है, माँ नहीं है। पैदा करने मात्र से माँ नहीं बन जाती, पिता नहीं बन जाते। माता वो है जो निर्माण करती है।
और थोड़ी देर के लिए आप चिंतन करें, इस संसार का निर्माण करने वाला परम पिता परमात्मा यदि अनियंत्रित हो जाए, अमर्यादित हो जाए, अपनी मर्यादाओं को लांघ जाए या भूल जाए, तो संसार बन सकता है? संसार का निर्माण हो सकता है? जब उस परम पिता परमात्मा ने स्वयं अपनी सामर्थ्य उस मातृशक्ति को दे दी और माँ को कहा आज से निर्माण का कार्य तुझे करना है, हाहाकार इसलिए मच रहा है क्योंकि परम पिता ने मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा विशेष निर्माण के लिए, सामर्थ्य तुझे दे दी, निर्माण करना चाहे तो कर ले, अन्यथा वही होगा, रास्ते चलते गोलियां लग जाएगी, कोई उठा करके रात को ले जाएगा, सुबह छोड़ जाएगा, ये तेरी नियति होगी, चयन तुझे करना है, ब्रह्मत्व मैंने तुझे सौंप दिया है, ब्रह्मा पद सौंपा है, संसार का सर्वश्रेष्ठ पद सौंपा, शर्त के साथ सौंपा, बस यही मैं मांगने आपसे आई हूँ, चिंतन करना, भले आपने हाथ उठाए दे सकेंगे, संसार का निर्माण हो जाएगा, केवल हमारा ही नहीं, संसार का निर्माण इसी से ही होना, कोई चारा नहीं है, साक्षात वेद का मंत्र है जहां पर परमपिता परमात्मा ने कहा है स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथा, उससे पहले 3 शर्तें रखी हैं कि इन 3 शर्तों का पालन करेगी तो ही ब्रह्मत्व शक्ति तेरे में आएगी और तभी ये संसार स्वर्ग नहीं मोक्ष धाम बन जाएगा। वो 3 शक्तियां मैं संक्षेप में शब्दशः कहूंगी तो शायद आपको कठोर लगेंगी, संस्कृत है वेद के सारी भाषा, मैं पूरा खोल के नहीं बचाऊंगी, वैसे समय भी नहीं है, सूत्र दूंगी, चिंतन करें। और सबसे मेरा निवेदन है पतियों से जो पत्नी से अपेक्षा रखते हैं, पिताओं से जो बेटी से अपेक्षा रखते हैं, और परिवार के अन्य सदस्य जो बहुओं से अपेक्षा रखते हैं कि बहू कैसी हो, बेटी कैसी हो, पत्नी कैसी हो, जो मॉडर्न अपने आप को समझते हैं, पुरुष भी, पुरुषों की अपेक्षा है तभी तो स्त्रियां इतनी सजती हैं। कभी अश्वपति ने कहा था कि मेरे राज्य में कोई स्वैरी नहीं है, स्वैरी मतलब व्यभिचार करने वाला कोई पुरुष नहीं है, इसके कारण कोई व्यभिचारिणी स्त्री नहीं है। उसका मतलब है यदि पुरुष चाह रहा है तभी ये, जिसके प्रति अंजलि बहन जी ने भी संकेत किया था, स्त्रियों की जो दुर्दशा आज पर्दों पे हम देख रहे हैं, बाजारों में देख रहे हैं, सड़कों में देख रहे हैं, अपने परिवार में देख रहे हैं, आर्य परिवार में भी, वो 3 शर्तें केवल याद दिला करके मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूंगी। परमपिता परमात्मा ने कहा स्त्री के लिए, माँ के लिए, जो ब्रह्मत्व पद को धारण करने की सामर्थ्य रखती है, उसी के पास ये टिक सकता है, सबके पास टिकेगा भी नहीं। सबसे पहली शर्त, अधः पश्यस्व मोपरि, तेरी दृष्टि नीचे रहनी चाहिए, ऊपर नहीं। जिसको माँ बनना है, जिनको ब्रह्मत्व पद की शोभा करनी है, और जो मानते हैं कि वास्तव में हम वेद के मानने वाले हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के मानने वाले हैं, वास्तव में हम अपने आर्य समाज को और वैदिक संस्कृति को उठाना चाहते हैं और संसार की सभी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, बहनों से निवेदन है दृष्टि नीची हो, संकेत इशारा समझना, ऊपरी नहीं, वेद के शब्द है मेरे नहीं है। अधः पश्य मोपरि, नीचे थे ऊपर नहीं। दूसरा, संतराम पाद कौहर, तेरी चाल गंभीर हो, तेरे कदमों में संतुलन हो, तेरा उठना बैठना उच्छृंखल ना हो। तीसरा, जिसको खोल दूं तो शायद अभी आप कहोगे कि इनको दोबारा मत बुलाना, गलती हो गई बुला करके, संकेत करूंगी वेद के शब्द है, मेरे नहीं है ये। वेद ने कहा तेरे अंग अंग ढके हुए हो, बाजारू नहीं है हम ब्रह्मा है, निर्माण करने की सामर्थ्य हम रखते हैं। आप देखें, साड़ी को भी लज्जा आ जाए वो भी सोचेंगे कि क्या मुझे बांधा है, उतार देती, वो पल्लू कहाँ गया। जो कभी बच्चे का सिर ढकता था, ठंड में उसका स्वेटर बनता था,
गर्मी में जो उसको छाया देता था, बारिश में जो उसको भीगने से बचाता था, वो चुन्नी कहाँ गई, वो साड़ी कहाँ गई। ब्लाउज सिलेंगे, हमारे कपड़े देख लो, वेद ने कहा तेरा अंग उपान ढका हुआ हो। ब्रह्मा बनना है, मातृत्व निर्माण। यदि हम चाहते हैं संसार की सभी समस्याओं का समाधान, दृष्टि नीचे रखें, शालीनता, लज्जा, दृष्टि ऊपर में। उसका मतलब ऐसा नहीं कि गांधागिरी की तरह हम पट्टी बांध के बैठ जाए। शालीनता, लज्जा, पाद पैर हमारे संतुलन में। आज तो दुल्हन नाचती नाचती मंडप में आती है, दुपट्टा गया हवा में, ब्लाउज और चढ़िया। संस्कृति मेरी कहाँ गई, वो माँ कहाँ मर गई मेरी। जो वीरों को पद्मिनी के गीत गाते हो, मदालसा के गीत गाने के लायक हैं, वो हांडी रानी की बात करते हैं जो अपना सिर काट के पति को दे चुकी। वो किरण की बात क्या करेंगे हम, उसके लायक भी हैं हम। कहाँ गई वो लक्ष्मीबाई, पैंट शर्ट पहन के घोड़े पे चढ़ी थी। आज की भी लक्ष्मीबाई देखो पैंट शर्ट पहन के क्यों नहीं चढ़ी, चढ़ा देते, ज्यादा सुविधा है ना उसमें। साड़ी कहाँ गई मेरी। वेद के मंत्र है, आप ढूंढ लेना, ऋग्वेद का मंत्र है, पता भी याद नहीं मुझे। अध पश्य स्वमोपरि संतराम पादकौ हर। आगे की पंक्ति के शुरू के 2 शब्द भूल गई मैं। कश्यप प्लकौ दृशन, माते कश्यप प्लकौ, तेरे अंग ढके रहे। स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ, ये 4थी पंक्ति। ब्रह्मा बनना एकमात्र सामर्थ्य परमपिता परमात्मा ने दिया है हमें। कलेक्टर को तुमको साधारण मनुष्य डिग्री देगा, डॉक्टर की डिग्री तुमको कोई साधारण मनुष्य देगा। परमपिता परमात्मा स्वयं कह रहा है, ये ब्रह्मा का पद मेरी कुर्सी पे आकर के तू बैठ। संसार की सभी समस्याओं का समाधान इसमें है। मैं आपकी न्याणी हूँ, ये मेरी आज की मांग है, पहली और अंतिम, कि हम इस वेद मंत्र को, यदि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जयकारे बुलाएंगे तभी बुलाएंगे जब इस वेद मंत्र को हम अपने जीवन में उतारेंगे, अन्यथा मौन धारण कर लेंगे। हम उस जयकारे बुलाने के लायक नहीं है। मैंने शुरू में कहा था, नाम से शीतल हूं। ये निर्माण इसलिए तो नहीं हो रहा, घर इसलिए तो टूट रहे हैं, ड्राइवर सारे परेशान हैं, बच्चे पढ़े लिखे भी उतने ही ज्यादा शैतान है। क्यों? माँ ही खो गई, माँ है, माँ को फुर्सत कहाँ। तो इस मंत्र के ऊपर हम चिंतन करेंगे। वाणी थोड़ी कठोर जरूर लगी होगी, पर मेरी नहीं थी, मैंने तो बड़े मठार के उसको रखा है आपके सामने। वेद की वाणी है, परमपिता परमात्मा की वाणी है। हम संकल्प लेके जाए, पति भी पिता भी, कि अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को वेद के मंत्रों को सार्थक करना चाह रही है, उसको बाजारू औरत बनने से रोकेंगे। हम अपेक्षा नहीं करेंगे कि तू बाल खुले छोड़ के चल। पतियों की अपेक्षा होती है, मेकअप कर, वो देख बगल वाली ऐसे हिल वाली चप्पल पहन के चलती, तू भी ऐसे आ, गंवार की तरह क्या साड़ी घुमा करके पहन करके घूमती। पतियों की भी अपेक्षा है, पिता भी चाहते हैं मेरी बेटी मॉडर्न बन जाए, इसलिए तो फ्रिज में भरी जा रही है, इसलिए तो उसके इतने टुकड़े किए जा रहे हैं। चलते राह चलते कोई भी गोली मार दे, कोई भी छेड़ रहा है। साड़ी में आइए, वेद के मंत्र को सार्थक कीजिए। ऐसे जैसा वेद मंत्र साड़ी तो आज भी पहनते, शादियों में भी पहनते, वो नहीं। वो साड़ी जिसको लक्ष्मीबाई ने पहना था, वो साड़ी जिसको हांडी ने पहना था, उस साड़ी को पहनना जिसको गार्गी ने पहना था। उस सलवार सूट को भी पहन सकते हैं, पर एक ढंग होता है। तो आज की नई पीढ़ी को उसकी माँ वापस लौटा दीजिए। संसार की सभी समस्याओं का समाधान केवल इसी में है। बाकी कितने ही जयकारे लगा दो, दयानंद जैसे कितने ही लोग आ जाए, माँ मर गई, दयानंद जी भी कुछ नहीं कर सकते। और यदि दयानंद जी नहीं है पर सारी माताएं जीवित हो गई, अभी स्वर्ग बन जाएगी ये भूमि। तो यही निवेदन, यही मांग है, दे सकते हैं तो दे दें। परमपिता परमात्मा का आदेश है, हमको सामर्थ्य मिली हुई है, पालन नहीं करेंगे तो दंड के भागी तो होंगे ही होंगे। तो हम सब वेद के इस मंत्र पर चिंतन करें। और पुनः मुझे इस कार्यक्रम में निमंत्रण दिया, अच्छा स्थान दिया बोलने के लिए। 2 शब्द, मेरे कटु शब्दों को भी बड़े शांति से आपने सुने
और इस पे मैं चाहती हूँ कि मनन भी करें, चिंतन भी करें, जीवन में जहाँ कहीं भी कमी है उस कमी को हटाएं ज़्यादा, क्योंकि समय हो रहा है। ज़्यादा न कहते हुए परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम दूंगी। ओम शांति। शीतल जी नो खूब